Hello everyone. In this video we are going to do let us think and reflect part of the poem Our Friend's Prayer. We had done first question in the first part of the poem Our Friend's Prayer, where we had circled the highlighted words to complete the summary. So we'll begin with the second question in this video. Now answer in one word. We have to give the answer in one word only. And the first question is A part. How does the poet feel about special friends? तो कैसा महसूस करता है about the special friends? The poetess feels blessed. Blessed feel करती हैं वो. And what does the poet use to realize what friends can be? ये समझने के लिए कि friends क्या होते हैं वो किसका use करती हैं? She uses heart. Read the following lines from the poem and answer the questions given below. Lines को read करके हमें नीचे दिए गए questions के answer करने हैं. A part. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. तो poetess हर वो एफर्ट करना चाहते हैं जिससे उनके फ्रेंड्स के होप्स और प्लान्स जो है वो रियलाइज हो सके. इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको एग्जाम में आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आंसर गिवन लाइंस के हिसाब से करना है. कई बार क्या होता है कि पोम की एज अ होल कुछ और मीनिंग निकल रहा होता है किसी क्वेश्चन का और उस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से कुछ और मीनिंग निकल रहा होता है, तो आपको उन गिवन लाइंस के हिसाब से आंसर करना है. So here she says, complete the sentences with the most suitable option. सबसे suitable option ढूंढना है. These lines tell us that the speaker is clever. Clever means चालाक. Caring, care करने वाला, ध्यान रखने वाला. Curious, उत्सुक, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला. Calm, शांत. तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? Yes, that's caring. And how will a speaker make her friends' wishes come true? By trying hard or by working a lot? क्या करना चाहते हैं? By trying hard. Fill in the blank with a suitable word. Suitable word से हमें blank को fill करना है. My friends will feel dash if their wishes come true. कैसा महसूस करेंगे उनकी wishes true हो जाएंगी तो they'll feel happy. Let me use my heart to see, to realize what friends can be and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. तो पोइटस अपने दोस्तों को जैसे हैं वो उसी तरह से प्यार करना चाहती हैं और जजमेंट नहीं करना चाहती उन पे. The speaker says that the feelings are important to understand friendship. Which lines tells us this? कौन सी लाइन हमें बताती हैं कि पोइटस ने कहा है कि फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्ती को समझने के लिए? तो विच लाइन? लेट मी यूज माई हार्ट टू सी. यूज माई हार्ट. फीलिंग्स कहाँ होती हैं? हार्ट में. तो ये लाइन्स हमें रिफ्लेक्ट करती हैं कि फीलिंग्स के बारे में बात कर रही है पोइटस. कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. सबसे सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है. दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज हेल्पफुल, मदद करने वाला. थॉटफुल, सोचने वाला. चीयरफुल, हैप्पी. होपफुल, आशावादी. तो कौन सा है इनमें से? यस, दैट इज थॉटफुल. फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड. एक वर्ड से फिल करना है. द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी डैश. शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर. क्या नहीं करना चाहते हैं? हाँ जी, क्या नहीं करना चाहते हैं? जरा लाइंस पढ़िए फिर बताइए. जजमेंट. कोई जजमेंट्स नहीं करना चाहते हो. गिव वन रीजन व्हाई वी कैन से दैट दिस पोम इज अ प्रेयर. कैसे कह सकते हैं कि ये पोम एक प्रेयर है? We can say that this poem is a prayer because it expresses poet's wishes and desires for a friend. क्योंकि friend के लिए उनकी wishes और desires को express करती है. Why does the speaker want to do more for her friend? क्यों और ज़्यादा करना चाहती हैं?
The speaker wants to do more for her friends because she sincerely loves them. क्योंकि उन्हें सच में बहुत सारा प्यार करती हैं वो. Do you think that the speaker knows about the wishes of her friend? How can we say so? हम कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी wishes को जानती हैं. Yes, the speaker knows about the wishes of her friends because she tells that she wants to try to make their wishes come true. क्योंकि वो कह रही हैं कि वो उनकी wishes को पूरा करने के लिए अपने efforts डालना चाहती हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें पता है wishes, तभी तो fulfill करवाएंगी. Do you also pray for your friends? करते हो? What do you wish for? उनके लिए क्या wish करते हो? बताइए. भाई मैं तो बहुत सारी चीजें विश करती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए. शुड आई शेयर? चलिए बताती हूँ. यस आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड्स. बहुत प्रे करती हूँ उनके लिए. आई विश फॉर देयर गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस दे मे फेस. उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनकी सफलता के लिए, और जो भी चैलेंजेस उनकी जिंदगी में आए उनमें वो सफल हो सकें, उनमें पार पा सकें, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ. आई विश टू सी देम शाइनिंग लाइक स्टार्स. मैं चाहती हूँ कि वो सक्सेस की पेडेस्टल पे स्टार्स की तरह चमकते हुए नजर आए. The poet says, with special friends I feel I am blessed. पोएट कह रहे हैं कि आई एम ब्लेस्ड फील करती हूँ. सिलेक्ट द वर्ड दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो. बॉक्स में गिवन वर्ड्स में से हमें उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो मीनिंग में ब्लेस्ड जैसे हैं. फर्स्ट इज एक्साइटेड. एक्साइटेड, एक्साइटेड होना, उतावला होना. ग्रेटफुल, थैंकफुल. अंडरस्टूड, समझना. थैंकफुल, थैंकफुल. रिलैक्स्ड, आराम, राहत महसूस करना. तो which one can be the similar words? They are grateful and thankful. Good friends have a lot of qualities. बहुत सारी qualities होती हैं. Let us list some. उनमें से कुछ को list करते हैं हम. So what can be the qualities? They have given us certain fillers here. कुछ फिलर्स दिए हैं. तो फर्स्ट इज लॉयल. अब ये क्या हो सकता है जी? दिस कैन बी हेल्पफुल एंड दिस कैन बी काइंड. एंड ये सी से बिगिन हो रहा है, आईएनजी से एंड हो रहा है. क्या हो सकता है? दैट इज केयरिंग. एंड एच से बिगिन होके टी पे एंड होने वाला क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जल्दी सोचो. यस, दैट इज ऑनेस्ट. सो these words. Now fill in the blanks with the words you just listed above. जो वर्ड्स हमने बनाए उनसे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक. मैं गलती कर दूं तो भी मेरी फ्रेंड कहती कोई बात नहीं, तो शी इज काइंड टू मी. माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी. शी इज वेरी, जब वो शेयर करती है तो वो क्या है? शी इज वेरी हेल्पफुल. माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी. अगर फ्रेंड हमेशा सपोर्ट करता है तो वो क्या है? ही इज लॉयल. माई फ्रेंड नेवर लाइज. शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट पीपल नेवर टेल लाइज. माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन caring for each other. Care verb always uses for preposition. परवाह करने की सेंस में यूज होता है ये. Think of any three of your friends. Write 3 sentences on why you like each of them. अपने 3 दोस्तों के बारे में सोचो और 3 sentences लिखो कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं. So this thing is to be done with your friends only. Now with this we come to the end of this poem and exercise. Thanks for watching the video
and may you shine like stars. Bye bye learning buddies.